समोसा नहीं खाए क्या? अरे तो समोसे वाली गुड आफ्टरनून होनी चाहिए। कोल्ड ड्रिंक की बात देखनी चाहिए। Myself, Dr. Poonam Verma, President, I extend take this privilege to welcome one and all to the second lecture of Impact Lecture session organized by Institution Innovation Council of Netaji Subhash Chandra Bose Government Girls PG College, Aliganj, Lucknow, and sponsored by Ministry of Education Innovation Cell and All India Council of Technical Education. I welcome our today's session resource person and principal ma'am. Before going ahead, I would like to invite Professor Anuradha Tiwari ma'am, our principal ma'am, to welcome our guests with a bouquet, a memento and plant. A round of applause, please. Thank you, ma'am. And I request to Dr. Rajiv Yadav, please welcome our principal ma'am with bouquet, plant and memento. ये बर्फीले पेड़ कहाँ से आए हैं इस मौसम में? Credit goes to Dr. Roshni Singh. अरे धन्यवाद। मतलब यहीं से कुछ सर्दी का खास हो। Thank you, sir. The Impact Lecture Series is an initiative of Ministry of Education. Sorry to interrupt. Beta recording. Don't forget recording. ये भी आ गया सर। Cut कर दूँगी इसको. Ministry of Education Innovation Cell to organize sessions thereby creating awareness and skills in innovation, entrepreneurship and intellectual property rights among faculty and students in IIC institutes in various regions across the country as per the NITI Aayog program. We have conducted first session in the first half that was based on startup and entrepreneurship, and this is the second session of Impact Lecture. This lecture is based on the theme Intellectual Property Rights. We are highly privileged to have an eminent speaker for this session, Professor K.C. Gurve, Chief Scientist and Head, Research Planning and Business Development Division, CSIR, Indian Institute of Toxicology Research. We welcome you, sir. Since 2002, he is working as Head Research Planning and Business Development Division. He has a number of publications in his credit, and Professor Gurve is an expert in IPR, in the field of IPR, technopreneurship, technology development and transfer. He got his first patent in 2012 in the area of thin video slide. Again, he received the patent in 2017 in the area of pictorial presentation. He will discuss in detail with you about his patent. Before going ahead, I would like to invite Professor Anuradha Tiwari ma'am for his blessing and to say a few words. हमारे मध्य विराजमान हमारे मुख्य अतिथि और आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर के.सी. कुलबे सर, चीफ साइंटिस्ट एंड हेड। और सर, मैं चाह रही थी कुछ समय, और मेरे सभी साथियों बच्चों, सॉरी तुम लोगों को कैसे भूल सकते हैं, तो और जो हमारे शोधार्थी हैं उनको भी बहुत बहुत, सभी का बहुत बहुत स्वागत। हाँ, मैं अपनी बात पूरी करती हूँ सर। आपके लिए
सबसे ज़्यादा इस महाविद्यालय में आतुर थी पूनम। बहुत शिद्दत से सुनना चाहती थी और मेरा कुछ टाइम थोड़ा ऐसा टाइट शेड्यूल चल रहा था, तो मैंने इससे कहा कि पूनम जितनी तुम उत्साहित हो उसी हिसाब से मुझे जरा सर के बारे में डिटेल में भेज दो। इसमें नहीं भेजा और अभी कह रही है कि देखिए मैडम आप दिल से स्वागत करती हैं, स्वागत तो आप अच्छा करती ही हैं। तो सर इस स्वागत को बहुत बहुत अच्छा मानिए। और मेरे को ये लगता है कि आप सब्जेक्ट पर इन लोगों को बताएंगे, ज़रूरी चीज़ें बताएंगे। आपने जो आज का कंटेंट इनके लिए चुना होगा, पर उसके साथ ही साथ मुझे हमेशा से लगता है छात्राओं या जो भी छात्र बच्चे जो भी सुनने वाले श्रोता हैं उनके दृष्टिगत कि जो व्यक्तित्व यहाँ आता है और किसी भी प्रकार का वक्तव्य देता है, चाहे वो एकेडमिक्स को लेकर के हो या एकेडमिक्स से परे, वो जब थोड़ा सा अपने बारे में भी बच्चों को बताता है तो वो एक अलग तरह का मोटिवेशन होता है। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये समझती हूँ कि बच्चे तथ्यात्मक जानकारी तो ग्रहण करते हैं ना। यहाँ सभी बड़े बच्चे हैं, थोड़ा सा बड़े मतलब यहाँ के बच्चों में जो बड़े बच्चे हैं, तो वैसे तो भी बच्चे हैं, वो उनको ये बहुत अच्छा लगता है घर जाके बताना। अगर उनको कोई बात अच्छी लगी, बात अच्छी लगने के साथ साथ अपने दीदी भैया मम्मी पापा जिसके भी नज़दीक होते हैं वो ये बताते हैं कि आज फलाने आए थे और उन्होंने ये बताया, ये बड़ी काम की चीज़ है, ये हमें पहली बार पता चली। और आपको पता है उन्होंने फलानी जगह से पढ़ाई करी थी और उनके पास उनके ऐसे नंबर आए थे, फिर उनको ये मुश्किल आई थी, फिर उन्होंने ऐसे किया। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कंटेंट के साथ साथ बच्चों को हर बोलने वाले का, प्रत्येक वक्ता का की जीवन यात्रा को जानने में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि ये उम्र ऐसी है कि इसमें हम गुणवत्ता पूर्वक और या गुणवत्ता से पूर्ण जो भी हम तथ्यात्मक ज्ञान ग्रहण करते हैं, उसके साथ ही साथ जिससे हमको मिल रहा है, हम उसके भी कुछ प्रेरक तत्व लेना चाहते हैं उसकी जीवन के। तो सर मेरे ख्याल से पूनम ने आपके बारे में मुझे डिटेल में ना बता के अच्छा ही किया, क्योंकि अब वो डिटेल में हम आपके द्वारा सुनना चाहेंगे। आप ही हमको बताइएगा। ये इतनी सारी भूमिका इस बात के लिए थी और ज़्यादा समय न लेते हुए मैं चाहूँगी कि प्रोग्राम आगे बढ़े। आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। पेट में समोसा शोर मचाए तो कोई बात नहीं, उसको शांत करिएगा। और बहुत कम या बच्चों के हाथ में नोटबुक नहीं है, तो जिनके हाथ में नहीं है मैं उम्मीद करती हूँ कि वो पेन और नोटबुक जरूर निकालें, क्योंकि हमको हमेशा महसूस होता है कि हमें सब याद रहेगा, पर इनफैक्ट होता पता है क्या है बच्चों, तुम इस कमरे से निकलोगे और शाम को जब बैठ करके सोचने लगोगे ना तो सब गायब हो जाएगा। अगर तुम्हारे पास 10 सेंटेंसेस ऐसे रहेंगे इशारे वाले कि एक सेंटेंस उन्होंने कुछ बताया और तुमने उसका एक कीवर्ड भी लिख लिया, तो वो उस एक कीवर्ड से तुमको उनकी बताई हुई पूरी बात याद आएगी। तो एक अच्छे श्रोता का सर्वप्रथम गुण है कि वो कान से सुने, आंख से देखे और हाथ से लिखे। वैसे भी वृद्धावस्था की उसका तुमसे तो मतलब नहीं है, फिर भी उसकी एक बीमारी से बचने का ये सबसे सरल इलाज है कि आंख, हाथ और मेमोरी का अलाइनमेंट जब सही रहेगा तब आप चीज़ों को भूलेंगे नहीं। तो चीज़ों को भूलने से बचना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और सभी बच्चे हो चुके हैं। धन्यवाद। थैंक यू मैम। जैसा कॉलेज के सभी लोग जानते हैं और सर आपको भी सुन के समझ में आ गया होगा कि मैम को जब आपके बारे में कुछ नहीं पता था तब उन्होंने इतना धमाकेदार वेलकम किया। पता होता तब क्या होता आप लोग अंदाजा लगा नहीं सकते हैं। तो अगर आपको प्रिंसिपल लिटरेचर का हो तो ये बहुत बड़ा प्रिविलेज होता है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सोचनी नहीं पड़ती, सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। तो मैं आप दोनों का पूरे दिल से स्वागत करती हूँ फिर से, और सारे बच्चों का फिर से स्वागत करती हूँ कि वो खा पी के एकदम बिल्कुल रेडी हो गए हैं फिर से दूसरा लेक्चर सुनने के लिए। तो ऑलरेडी वी आर रनिंग लेट,
taking too much time, I would like to request Professor Pulve Saab for his talk. Very good. I need energy in my class. सब लोग जागे रहेंगे, कोई सोएगा नहीं, दिमाग का टाइम। मैडम प्रिंसिपल मैम ने इतना वार्म इंट्रो और इतना वार्म इंट्रोडक्शन किया है कि हम लोग जगे रहेंगे। और मैं आपको बताऊं, ये दो लॉयर्स होते और एक जज होता है, दोनों लॉयर्स सही होते, कोई गलत होता है, कोई लॉयर गलत होता है, दोनों के पास अपनी अपनी बात को कहने के एविडेंस है, लेकिन तब भी एक सही होता है, एक। तो ये जैसे जर्नल लॉ होता है, स्लाइड ओके। तो व्हाट इज इनोवेशन? Innovation is doing something new from the existing available information. उसको इनोवेशन कहते हैं। कुछ भी नया जो एज ऑन डेट हम लोग के पास अवेलेबल है, उसमें कुछ ऐसा नया करना विच इज नॉन ऑब्वियस। जैसे मैंने 7 इंच की पेंसिल बनाई और किसी ने 10 इंच की बना दी, ऑब्वियस, इसमें क्या नया है? तो ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, कुछ नॉन ऑब्वियस होना चाहिए। और जैसे ही आप कुछ नॉन ऑब्वियस इन्वेंशन करते हैं, आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आपके पास कुछ राइट्स आ जाते हैं, वो आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी देता है। आपके इनोवेशन को प्रोटेक्शन के लिए, आपके इनोवेशन को कोई स्टील न कर ले, आपके इनोवेशन को कोई विदाउट योर परमिशन यूज न कर ले, उसके लिए आप अपने इनोवेशंस को प्रोटेक्ट करते हैं आईपी लॉ के थ्रू। और जैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ लगता है, वैसे ही आपके पास जो राइट्स आ जाते हैं, जो पावर आ जाती है, वो है आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अच्छा, ये फिर मैं क्या कहता है, ये इट इज एन एक्सप्लोरेटरी सब्जेक्ट। कोई चीज दिमाग में कभी भी आए, मुझे तुरंत रोकिए और अपना सवाल पूछिए, और अगर दिमाग में ना आए तो आनी चाहिए। बेसिकली जब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ वर्ड में इंट्रोड्यूस हुआ, उन लोगों को जो इनोवेशंस कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मालूम है इनोवेशंस स्पेशली फार्मा इंडस्ट्री में इन्वेंशंस कितने कॉस्टली होते हैं। इन जनरल ये कंसेप्ट है। वैसे एक आपको इंफॉर्मेशन देता हूँ, 1987 के बाद अभी तक कोई एंटीबायोटिक नहीं बनी, कोई नई एंटीबायोटिक नहीं बनी। वैसे जनरली माना जाता है एक नई ड्रग को ढूंढने के लिए, मैं 10-12 साल पुराना डेटा दे रहा हूँ, 15 साल का टाइम और फिर $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होता है। अब मान लीजिए एक कंपनी है फाइजर, उसने एक नई ड्रग बनाई और पता चला दूसरे वो ल्यूपिन और सिप्ला और जाइडस, इन सब लोगों ने उसको बना के सेल करना शुरू कर दिया। तो उसने तो $5 बिलियन लगाए। क्यों लगाए? क्या फायदा? तो वो जैसे ही उसको डेवलप करता है, वो उसको प्रोटेक्ट कर लेता है, ताकि अगले 20 साल तक एज ऑन डेट आईपी जो मिलता है, पेटेंट मिलता है 20 ईयर्स के लिए मिलता है, अगले 20 साल तक उसको कोई कॉपी ना कर पाए। तभी तो, ताकि वो 20 साल में उसका कॉमर्शियली एक्सप्लॉयट करके अपना इन्वेस्टमेंट जो हुआ था उसको रिकवर कर पाए। तो बेसिकली जब हम लोग जब स्टार्ट हुआ आईपी लॉ पूरी दुनिया में स्टार्ट हुआ, तो 7 तरह के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती थी। पहला है पेटेंट, जो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड ज़्यादा है, क्योंकि उसमें इनोवेशन, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट, प्रोग्रेशन, ये सब ज़्यादा होता है। दूसरा है कॉपीराइट। सब लोग जानते हैं कॉपीराइट, सारी फिल्में कॉपीराइट पे बनती हैं, किसी न किसी के नॉवल जो हैं वो कॉपीराइट पे होते हैं। कोई भी चीज़, आपके सिग्नेचर, ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है ना, वे ऑफ प्रेजेंटेशन मेरा कॉपीराइट। अगर आप कोई फ़ोटो खींचेंगे और कहीं दिखाएंगे, मैं आपके खिलाफ केस कर सकता हूँ।
क्योंकि दिस इज माय वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये कॉपीराइट। तीसरा है ट्रेडमार्क। कॉपीराइट मैं हमेशा कहता हूं वीकेस्ट आईपी इंस्ट्रूमेंट, वीकेस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और ट्रेडमार्क कॉस्टलीस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब आप लोगों में कई लोगों के पास मोबाइल होंगे इस वक्त, हैं? जस्ट गूगल सर्च कीजिए, गूगल सर्च कीजिए ट्रेडमार्क वैल्यू ऑफ एप्पल। दूसरा कोई लिखे ट्रेडमार्क वैल्यू ऑफ कोका कोला। तीसरा लिखे ट्रेडमार्क वैल्यू ऑफ आईफोन। चौथा लिखे ट्रेडमार्क वैल्यू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। जो भी दिमाग में आए, सैमसंग, फिलिप्स, फाइजर, सोनी, आप कुछ भी लिखिए और मुझे वैल्यू बताइए। जिसको मिल जाएगा बताएगा ट्रेडमार्क वैल्यू ऑफ जो भी चीज ढूंढ रहा है। किसके पास मिला? खड़ी हो जाए। एप्पल, हाउ मच इज द वैल्यू? 570 517 US billion dollars. Am I right? 517 billion dollars. 1 बिलियन क्या कितनी वैल्यू होती? 1 बिलियन इज इक्वल टू हाउ मच रुपीज? Take your time. Not in 1 million. 1 million. Say 1 million. How much it is? 10 lakhs. And 1 billion. 100 crores. 1 billion is 100 crores. ठीक. अब 500 million. 1 billion is 100 crore. अब 100 billion 10,000 crore. 500 50,000 crore. Now this is billion dollars. Now convert it to rupees. फिर 100 से मल्टीप्लाई करो। 5 लाख 50 लाख रुपये, 50 लाख रुपये एक ब्रांड वैल्यू, ट्रेडमार्क की वैल्यू है, जो कोई प्रोडक्ट नहीं है। नथिंग इज टू बी सोल्ड, इट इज जस्ट द ब्रांड वैल्यू। गेटिंग माय पॉइंट? उसके अलावा किसी ने किया कुछ मिला होगा? कोका कोला 106 billion dollars. कोका कोला, it is not a product, you are not going to buy it. It is the intellectual property, it is the brand value. मैं आप लोगों को ये फिगर इसलिए बता रहा हूँ कि why intellectual property is so important to be in the business, why to protect your intellectual property. What is the importance? बिलियन बिलियन 500 बिलियन डॉलर की बात करते हैं, जहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है। पता चला क्यों IPIQ सब लोग चिल्लाते पूरी दुनिया? वैल्यू पता चली? सिर्फ कॉपीराइट को आपने वीकेस्ट क्यों कहा? रोमियो जूलियट की स्टोरी, मेरी आवाज़ सब तक पहुँच रही है ना? मैं बहुत डॉक्टर हूँ। रोमियो जूलियट की स्टोरी 1000 टाइम्स लिखी जा चुकी है। मैंने सारी 1000 नॉवल स्टोरी सारी कुछ पढ़ी, और उसके बाद मैंने किसी भी नॉवल से, किसी भी स्टोरी से कोई पैराग्राफ, कोई सेंटेंस कॉपी नहीं किया। एक नई नॉवल लिखी जिसमें वे ऑफ एक्सप्रेशन अलग है। मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया, सारा कुछ वे ऑफ एक्सप्रेशन मेरा इंडिविजुअल है, तो वो मेरा कॉपीराइट होगा। तो 1001st नॉवल जो रोमियो जूलियट की स्टोरी निकलेगी वो मेरा कॉपीराइट होगा। इन्फ्रिंज करना मतलब उसको तोड़ के बाहर निकलना आसान है। इस
वो सेंस बना, उस आईपी में मज़ा आने का कॉन्सेप्ट। क्यों आप लोग लंच के बाद इतनी देर बैठे रहे, बोर हुए, क्यों एक बोरिंग लेक्चर और सुनना है? कुछ अच्छा लगा, गुड, अगर लगा तो थैंक यू। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन। डिज़ाइन एस्थेटिक व्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट, एस्थेटिक व्यू। पार्कर का पेन है, इसका ये जो डिज़ाइन है, इसे छोड़िए। कोका कोला बॉटल का जो डिज़ाइन है, वो डिज़ाइन में प्रोटेक्शन है। कोई आदमी कोका कोला बॉटल की कॉपी नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं। कोई पार्कर पेन का डिज़ाइन कॉपी नहीं कर सकता। कर सकता है? नहीं कर सकता। ये डिज़ाइन प्रोटेक्शन है। जितने तनिष्क वाले जितने नए ज्वेलरी के डिज़ाइन निकालते हैं, सब प्रोटेक्ट कर लेते हैं। जितने ड्रेस डिज़ाइनर्स, रितु बेरी, मनीष मल्होत्रा, ये लोग जितने नए नए ड्रेस डिज़ाइन करते हैं, सब डिज़ाइन में प्रोटेक्ट कर लेते हैं। उस प्रोटेक्शन की वजह से कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। इस वजह से उनकी जो एक डिज़ाइन है वो लाखों करोड़ रुपए में निकलती है। अगर उनके पास डिज़ाइन प्रोटेक्शन ना होता, अगर इस दुनिया में डिज़ाइन प्रोटेक्शन ना होता, आज वो बनाते, ऐश्वर्या राय पहन के आती, तुरंत यहाँ कॉपी हो जाता, कल से यहाँ बिक रहा होता। तो उनके डिज़ाइन को इतनी वैल्यू कौन देता? इसलिए प्रोटेक्शन होता। ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल इंडिकेशंस। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस में जैसे लखनऊ की चिकन, बनारसी साड़ी, आगरा का पेड़ा, ये सब जियोग्राफिकल इंडिकेशंस हैं, प्रोटेक्टेड हैं। उसके बाद है लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और उसके बाद लास्ट है ट्रेड सीक्रेट। सात तरीके के होते हैं: पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एंड ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट का एग्जांपल किसी को पता है? कोका कोला का फॉर्मूला ट्रेड सीक्रेट का दुनिया भर का बेस्ट एग्जाम्पल। अभी तक सीक्रेट है। जितने साइंस फैकल्टी जितने हैं, साइंस के जितने स्टूडेंट हैं, हम लोग के पास GCMS, LCMS, मल्टीटॉप, टॉप कितने सारे इक्विपमेंट हैं, हम हर एक चीज़ को कैरेक्टराइज कर देते हैं। लेकिन कोका कोला का फॉर्मूला आज भी सीक्रेट है। अब बहुत सारे सवाल आते हैं, सवाल मेरे ख्याल से जितना मैंने बताया, अब इसके बाद मैं सोचता हूँ कुछ सवाल आने चाहिए। चलिए, अब इतनी चीज़ें बताने के बाद सवाल। अब उधर मत देखिए, जो मैम ने कहा था नोट बनाइएगा, नोट्स बनाने मैं तो कहता हूँ सुनिए। अगर मैं आपको सेंसिटाइज कर पाया, सेंसिटाइज नहीं बना रहा, सेंसिटाइज कर पाया नए टॉपिक के लिए, मेरा काम खत्म। कोई सवाल, किसी के दिमाग में कोई सवाल आता है? आईपी को इन्फोर्स कराने में कैसे करेंगे? इन्फोर्स कराने, आईपी, अब इन्होंने एक सवाल पूछा कि आपके पास एक आइडिया है, नया प्रोडक्ट, इन्वेंटेड प्रोडक्ट है, नया इन्वेंशन है, नया डिज़ाइन है, नई नॉवेल है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? पहले कैसे प्रोटेक्ट किया जाए? हर एक चीज़ के प्रोटेक्शन के लिए अलग अलग
अलग अलग स्टाइल। प्रोटेक्शन के बाद अगर आपको मुझको एक पेटेंट मिल गया, अब मेरा पेटेंट कोई इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहा है, कोई बिना मेरी परमिशन के यूज तो नहीं कर रहा है, ये मेन मुद्दा है, यही ना। ऐसा होता है जनरली, जैसे अगर मैडम ड्रोसोफिला पे काम करती तो इनको पता है कि पूरी दुनिया में ड्रोसोफिला में कितने लोग काम करते हैं, जो उनको मॉनिटर करती रहेंगी कि ये मेरा पेटेंट तो नहीं यूज़ कर रहे। या किसी को, जैसे किसी ने नॉवल लिखी, मैं रोमियो जूलियट की स्टोरी पर फिर से आता हूँ, मैंने नई नॉवल लिखी, मुझे पता है कि वो एक स्टोरी फिल्म बनने वाली है, उसमें वो रोमियो जूलियट से रिलेटेड स्टोरी ढूंढ रहा है, तो उसे पता है, तो वो उनको मॉनिटर करता है। दूसरी बात, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे आपकी कार आपकी प्रॉपर्टी है, जैसे आपका हाउस मकान आपकी प्रॉपर्टी है, वैसे ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी। कार आपकी पोर्टिको में खड़ी थी, किसी ने जो आज सुबह खड़ी नहीं देखी, पुलिस को कौन बताएगा? पुलिस को अपने आप पता चल जाएगा, आप बताइए ना। अगर आपकी कार, अगर आपके मकान में कोई और आके रहने लगा बिना आपकी परमिशन, आपका किराएदार नहीं है, तो पुलिस को कौन बताएगा? आप मॉनिटर करेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी मिसयूज तो नहीं हो रही। आप बताइए, आप ओनर हैं और आप जैसे ही पेटेंट अथॉरिटी, आप सिर्फ देखिए, आप सिर्फ ये नहीं बताते कि वो मिसयूज कर रहा है, आप ये बताते हैं कि ये इसने मेरा मिसयूज किया, इसकी वजह से मेरा इतने $1 मिलियन का कॉमर्शियल लॉस हो गया, या वो इतने $1 मिलियन इसने कमा लिए, तो उसको मेरे को 90% मुझे मिलना चाहिए। क्लेम करते हैं, क्लेम फाइल होती है आईपी में, हमेशा अमाउंट पे क्लेम फाइल होती है। फिर मैं एक चीज़ कहता हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस का भी हेड हूँ अपने ऑफिस में, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, एवरीथिंग कॉस्ट मनी। मैं यहाँ पे हूँ, उसका भी कुछ कारण है, यूँ ही भला पुरुषार्थ करने के लिए नहीं आया हूँ, बहुत मुश्किल है। हर एक के ऑब्लिगेशन है, मुझे भी अपने ऑफिस में कुछ दिखाना है कि मैंने आज क्या किया। अभी थोड़े टाइम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक स्टोरी बता रहा हूँ। कोरोना टाइम के पीरियड के आसपास हम लोग जो चीफ सेक्रेटरी रैंक पे हैं, साइंटिस्ट जी, चीफ साइंटिस्ट हैं, एवरी डे 4 o'clock पे हम लोग को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती थी ऑनलाइन कि हमने आज दिन भर में क्या किया। 3-4 साल चली, मोदी जी ने ये वो करा दिया, और अगर आपने 4 बजे नहीं सबमिट की, वो ब्लॉक हो गया, तो अगले 2 साल तक वो लाल निशान दिखाता है, इन्होंने रिपोर्ट नहीं जमा की। और कभी भी वो रिपोर्ट होकर आपसे पूछा जाता है कि पिछले महीने में 4 दिन आपने रिपोर्ट नहीं जमा की, गिव मी द एक्सप्लेनेशन। ये आप लोगों को, टीचरों को बता देंगे, ऐसा नहीं है टेंशन में हम लोग भी घूम करते हैं। स्टूडेंट को बता दें, ऐसा नहीं है कि तुम ही लोग सबसे ज़्यादा टेंशन में हो, जो लोग नौकरी पा गए वो टेंशन में नहीं है, ऐसा नहीं है। बच्चों को लगता है कितना टेंशन, हम लोग पढ़े भी, काम भी दें और कंपटीशन भी दें और फिर मम्मी पापा की बात भी माने, और ये क्यों बहुत प्रेशर है। अभी तो दुनिया शुरू नहीं हुई, अभी क्या प्रेशर, टीचर से पूछो, जब दुनिया शुरू होगी तब पता चलेगा प्रेशर क्या होता है। गोल्डन पीरियड है आपकी लाइफ का, फिर अभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ। ये जो स्टूडेंट्स, जब तक आप क्लास अटेंड करते हैं, सारी फैकल्टी भी लैंग्वेज में, जब तक आप क्लास अटेंड करते हैं, उससे कम टेंशन का पीरियड कोई नहीं होता। सिर्फ एक बार 2-3 दिन आते हैं जब एग्जाम होता, उसके अलावा सुख ही सुख है।
एग्जाम ना देना पड़े और रिजल्ट ना अनाउंस हो, उसके अलावा कोई टेंशन नहीं है। बेस्ट टाइम है लाइफ का। बीच में मैम ने कहा अपने बारे में बताइए। मेरा नाम कैलाश चंद्र खुलबे, मैं लखनऊ में ही पैदा हुआ। खुलबे हम लोग वैसे हैं उत्तराखंड के रहने वाले, नैनीताल के, लेकिन मैं पैदा लखनऊ में हुआ। सारी स्कूलिंग लखनऊ में हुई। MSc PhD लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद जब 2002 से मेरी को ये डिसाइड हुआ कि अब मुझे प्लानिंग और बिजनेस डेवलपमेंट देखना है। PhD ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके केमिस्ट्री होने की वजह से केमिस्ट्री अभी मैम है नहीं केमिस्ट्री वाली, केमिस्ट्री मेरा सबसे बड़ा हार्ड है ना केमिस्ट्री की कोई बात करेगा तो मुझसे मज़ा शायद ही किसी हुआ। मुझे बहुत मज़ा आता, हो सकता है तुम लोगों के लिए बोरिंग सब्जेक्ट हो, लेकिन अगर मेरे साथ हफ्ते 10 दिन रहेगा तो इंटरेस्टिंग बना दूंगा, मेरी गारंटी। उसके बाद जब ये डिसाइड हुआ कि मुझे बिजनेस डेवलपमेंट में अपनी लाइफ निकालनी है तो मैंने MBA करी, इग्नो डिस्टेंस लर्निंग, कॉलेज में रहते हुए इंस्टीट्यूट में रहते हुए पार्ट टाइम 2002 से 2006 के बीच में मेरा MBA। उसके बाद जब ये पता चला कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अब आप सुनिए, तो हमने सर्च करना शुरू किया कि दुनिया में सबसे बेस्ट कोर्स कौन है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को पूरी दुनिया में कंट्रोल करने की, हार्मोनाइज करने की एक UN एजेंसी है जिसका नाम है WIPO, WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में, स्विट्जरलैंड। तो हमने कहा उसको देखा, सोचा देखिए आप जब भी कोई चीज़ नई चीज़ सर्च करते हैं तो अचानक से नहीं मिलती, 3 साल लगते हैं, 3 साल। तो जब सर्च करना शुरू किया तो उसमें कुछ कोर्सेज फ्री थे। हम लोग इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, कुछ कोर्सेज फ्री हैं हमारे, हमने वो कोर्स कर दी, फ्री वाले सर्टिफिकेट आने शुरू हो गए। आते आते फिर पता चला उनका एक LLM प्रोग्राम, सेकंड लेवल मास्टर्स डिग्री, जो जिसमें 50% बच्चों को फेलोशिप मिलती है। अप्लाई करना शुरू कर, 1 साल किया नहीं आया, दूसरे साल किया नहीं आया, तीसरे साल किया, जब नहीं आया तो मतलब बड़े दुखी मन से हम कहीं घरों के बाद किसी बच्चों के साथ घूमने चले गए, तो पता चला कि वो आ गया, लेट आया। और उसमें फ़ायदा ये हुआ कि हमने जो कोर्सेज फ्री वाले किए थे उसकी वजह से हमें एडेड एडवांटेज मिला, इसलिए हमें फेलोशिप मिली। पूरी फेलोशिप पे WIPO का LLM इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में सेकंड लेवल मास्टर्स कोर्स हम जिनेवा से कर दिया। उसके बाद हम अब IP एक्सपर्ट। अब हमसे IP के बारे में हमसे ज़्यादा समझने वाले कुछ ही लोग थे। फिर हमने जब ये हुआ तो हमने डिसिमिनेट करना शुरू किया कि अब हम भी लेक्चर लेना शुरू करें, लोगों को सेंसिटाइज करें। फिर मैं कह रहा हूँ जो आप ग्रेजुएट लेवल के यहाँ पे बच्चे हैं, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के जो बच्चे हैं वो WIPO की साइड देखें। अगर उन्हें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में थोड़ा भी इंटरेस्ट है, वहाँ के फ्री कोर्सेज कर लें, कुछ ना कुछ फ़ायदा है। हमारे बड़े भाई कहते थे कोई भी डिग्री लोगे कुछ ना कुछ फ़ायदा ही दे के जाएगी, नुकसान कभी नहीं करेगी। इस कंसेप्ट को हम अपनी लाइफ में पूरी तरह से मानते हैं। कुछ भी डिग्री ले लो, एक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लो 6 महीने का, एक डिप्लोमा कुछ ले लो, कहीं ना कहीं जाके कुछ फ़ायदा ही करते जाए, नुकसान नहीं है ना। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे अगर कोई देखना चाहे तो हम लोग कर सकते हैं।
अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि 15-20 मिनट का ही टाइम बचा है। आप लोग भी बड़ी देर से रुके हुए हैं ना, जबरदस्ती बड़ी मुश्किल से बैठा रखा है कि नहीं आपका लेक्चर सुनना जरूरी है। वो आएंगे बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़े वो आपको कुछ सुनाएंगे, सुनिए, है ना। चलिए थोड़ा थोड़ा सुनाते हैं। पेटेंट होते हैं, पहले वाली प्रॉपर्टी तो मैंने बता दी, लाइक एनी अदर प्रॉपर्टी विच मे बी बॉट, सोल्ड, असाइन्ड और लाइसेंस। जब आप परमिशन देते हैं मेरी कार आप ले जाओ, 1 महीने के हिसाब से मुझे 50,000 रुपये महीना दे दो, या आप कहते हैं यार सुबह मुझे ऑफिस छोड़ दो, शाम को ऑफिस से ले लो, उसके अलावा दिन में टैक्सी चला लो, जो भी एग्रीमेंट हो। हम कहते हैं हफ्ते भर के लिए मैं लखनऊ के बाहर जा रहा हूँ, हफ्ते भर के लिए टैक्सी ले लो, टैक्सी चला लो, जो भी एग्रीमेंट, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट में भी लाइसेंस असाइनमेंट माने होता है पावर ऑफ अटॉर्नी दे देना। मेरी कार आपकी हो गई 5 साल के लिए, आप चाहे जो कर। अगर मेरी 25 लाख की गाड़ी है तो मैंने कहा 15 लाख मुझे दे दें। अगर हम लोग पेटेंट की बात करें, जो मैं हमेशा कहता हूँ थोड़ा सा, तो पेटेंट्स आर गिवन फॉर द साइंटिफिक इन्वेंशंस, इनोवेशंस, अपग्रेडेशन, जो भी आप चीज कहें, फॉर एन इन्वेंशन नॉन ऑब्वियस, नॉट ऑब्वियस, नॉन ऑब्वियस, तभी इन्वेंशन कैटेगरी में आएगा। अगर ऑब्वियस होगा इन्वेंशन। बाय अ कंट्री, एक कंट्री, आप अगर अपना पेटेंट इंडिया में फाइल करते हैं तो इंडिया में आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अगर आप इंडिया और स्विट्जरलैंड में फाइल करते हैं तो 2 कंट्री में मिलेगा। जितनी कंट्री में करेंगे उतनी कंट्री में मिलेगा। टू द इन्वेंटर माने, जैसे मैं CSIR IITR में साइंटिस्ट हूँ। जब भी हम कोई नौकरी शुरू करते हैं, बच्चों के लिए फैकल्टी को पता है, जैसे हम कोई नई नौकरी शुरू करते हैं, एक हम पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करते हैं कि आज के बाद मेरे इंटेलेक्चुअल आउटपुट विल बी ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। इन लोगों ने जो साइन किए होंगे कि इन्होंने अगर कोई किताब लिखी, कोई नया किया, उसकी ओनरशिप कॉलेज पे होगी, सरकार पे होगी। वैसे हम लोग ने किया हमारी CSIR पे, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इन्वेंटर, एज ए इन्वेंटर डिग्री हमको मिला, पेटेंट हमको मिलेगा, लेकिन हम उसे कॉमर्शलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि ओनर जो है वो हमारा एम्प्लॉयर है, CSIR है। फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, लिमिटेड पीरियड माने 20 साल के लिए पेटेंट होता है। इन एक्सचेंज फॉर फुल डिस्क्लोजर ऑफ द इन्वेंशन। देखिए, आप जब कोई स्टोरी लिखते हैं, कोई फिक्शन लिखते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, तो हाइपोथेसिस कितना बताएं कितना न बताएं, लेकिन पेटेंट एप्लीकेशन में आपको उस लेवल तक डिस्क्लोज करना होता है, उस लेवल तक इंफॉर्मेशन देनी होती है जिसमें एक ऑर्डिनरी आदमी उसको रिप्रोड्यूस कर दे, उसको बना पाए। उस लेवल तक का आपको डिस्क्लोजर देना होता है, तभी आपको पेटेंट मिलता है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सारी चीजें तो पहले ही बता चुका हूँ। पेटेंट के बाद कॉपीराइट, जैसा कि मैंने बताया, कॉपीराइट किसी भी चीज़ का कॉपीराइट हो सकता है। मैंने नॉवल बनाई, मैंने पेंटिंग बनाई, मैंने फोटो बनाई, मैंने फोटो खींची, किसी भी चीज़ का, ये जो डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन भी अगर ये नॉवल डिज़ाइन है, किसी ने अपना किया है, हम इसी को एज इट इज प्रोटेक्ट कर लें। कॉपीराइट में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि विदाउट रजिस्ट्रेशन आपको पेटेंट कॉपीराइट ऑफिस में जाके रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता, वो फिर भी आपका कॉपीराइट होता है। बस आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि इस दिन से पहले जो भी इन्फ्रिंज कर रहा है कि आपने इससे पहले आपने डेवलप किया था। जैसे आपकी एनुअल रिपोर्ट में छप जाए, आपकी सिनॉप्सिस में छप जाए, आपकी PhD में छप जाए, कहीं पे छपा होना चाहिए, तभी तो आप कहेंगे कि इस दिन मैंने डेवलप किया था। अगर वो छप नहीं पा रहा है तो आप कॉपीराइट ऑफिस में एप्लीकेशन जमा कर देते, ताकि वो डेट
प्रायोरिटी डेट आपकी फिक्स है। कंप्यूटर प्रोग्राम बहुत आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। इंडिया जो है, इंडिया क्या है, इंडिया का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है वर्ल्ड में? हम डेवलप्ड वर्ल्ड है, डेवलपिंग है। हम डेवलपिंग वर्ल्ड नहीं, हम डेवलपिंग के ऊपर हैं। हम इकोनॉमी इन ट्रांजिशन है, एक है डेवलप, एक है डेवलपिंग, हम इनके बीच में। हम डेवलपिंग के ऊपर और डेवलप के नीचे हैं। वर्ल्ड की दो इकोनॉमी है, इंडिया और ब्राज़ील, जो इकोनॉमी इन ट्रांजिशन मानी गई है। हम डेवलपिंग वर्ल्ड के ऊपर हैं और बहुत जल्दी ऐसा एज्यूम होता है कि हम डेवलप हो सकते हैं। कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, बात अलग, लेकिन हम इकोनॉमी इन ट्रांजिशन। जब पूरी दुनिया में ये हुआ कि पेटेंट रेजिम को इम्प्लीमेंट किया जाए, 1995 में एक है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, उन्होंने एक एग्रीमेंट निकाला जिसका नाम है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उन्होंने एक कन्वेंशन निकाला और पूरी दुनिया को फोर्स किया कि इसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कीजिए। तो इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग कंट्री, हम लोग को 10 साल का एग्जम्पशन मिला। ये कहा गया कि WTO के हिसाब से हम 2005 से अपनी ट्रिप्स एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे और जो अंडर डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको 20 साल का एग्जम्पशन दिया गया। 2015 1 जनवरी 2015 से करना था, जिसको अभी फिर एक्सटेंड कर दिया गया है। अब उनका हो गया जुलाई 2034, 2034 तक उनको एग्जम्पशन दे दिया गया। अब वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये हम आइसोलेशन में नहीं रह सकते दुनिया में। हमें दुनिया के इंटरनेशनल कन्वेंशंस को फॉलो करना जरूरी है, वरना सारे इंटरनेशनल ट्रेड बंद हो जाएंगे। हमको वो करना जरूरी है, हम उनको फॉलो करेंगे। तो अब लेकिन 2005 के बाद हमने एक स्यूडो ट्रिप्स एग्रीमेंट फॉलो का रूल बनाया, स्यूडो पेटेंट प्रोडक्ट पेटेंट का लगाया। तो लेकिन 2009 से हम ट्रिप्स कंप्लायंट कंट्री है, फुल्ली ट्रिप्स कंप्लायंट कंट्री है। हमको कोई टेढ़ी आंख से नहीं देख सकता। हम लोग पूरी तरह से उनके रूल्स रेगुलेशंस को, जो रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करते हैं। इस बीच में मैं अपनी स्टोरी नहीं सुनाता था थोड़ा, ताकि बच्चे सोए ना, है ना। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क क्या होता है? टाटा, बिरला, सोनी, एप्पल, आईफोन, फाइजर, वो सब आप लोग ने देखा, देख लिया। ट्रेडमार्क क्या होता है? कोई भी चीज जिसकी वजह से उसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट डिमांड, मारुति है तो अलग। अब क्या ट्रेडमार्क का मतलब क्वालिटी है? मारुति 800 और ऑडी क्या हम लोग कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मारुति 800 वाली क्वालिटी देगा, वो अपनी वाली क्वालिटी देगा। मारुति में भी अच्छी वाली गाड़ियाँ आती हैं, ऑडी में भी सस्ती आ सकती है, मर्सिडीज साइकिल आती है। तो ट्रेडमार्क जो मार्क, जो बिजनेस वैल्यू देता हो। उसके बाद मैंने आपको बताया था डिज़ाइन, एस्थेटिक व्यू ऑफ एनी प्रोडक्ट। एस्थेटिक व्यू जो आपको दिखाई दे रहा है उसको कोई कॉपी ना करे, जो एस्थेटिक व्यू जो दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैंने बताया था लेआउट डिज़ाइन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इंटीग्रेटेड सर्किट्स का है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग ये बात करते। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ज्योग्राफिकल एरिया में जो एक्टिविटीज होती है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस में आते हैं।
आगरा का पेठा, लखनऊ की चिकन, बनारसी साड़ी, ये सब भी। आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज बताएं, लखनऊ की टुंडे कबाब क्या चीज है ये? जीआई है या ट्रेड मार्क है? जीआई वो होता है जहां एक ग्रुप, एक सोसाइटी, कुछ लोग मिल के वो काम कर रहे हैं। टुंडे कबाब ऐसा नहीं है। टुंडे कबाब ट्रेड मार्क। और इंटरेस्टिंग, आप लोगों को नहीं पता होगा, टुंडे कबाब ट्रेडमार्क सुप्रीम कोर्ट में जाके सेटल हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक गया। असल में टुंडे कबाब सर अगर एक ही ज्योग्राफिकल लोकेशन पर दो सोसाइटी है तो वो एक ही प्रोडक्ट के लिए दे नहीं पाएंगे? उन दोनों को मर्ज होना पड़ेगा। अगर एक ही एक्टिविटी है, दो सोसाइटी है, उनको मर्ज होना पड़ेगा। एक ही लोकेशन, ज्योग्राफिकल सेम ज्योग्राफिकल एरिया पे दो सोसाइटी। मैंने जैसे मान लीजिए लखनऊ की चिकन, सुनो बेटा, लखनऊ की मैं बोल रहा हूँ तो कोई और नहीं बोलेगा, कोई और बोलेगा तो फिर मैं तो जैसे लखनऊ की चिकन, हम सोचें 10,000 आर्टिसान मिल के लखनऊ में चिकन काम करते हैं। हमने एक सोसाइटी बनाई जिसमें हमने 10,000 आर्टिसान्स को लेके एक सोसाइटी बना ली, जीआई फाइल कर। अब क्या हुआ, उसके बाद खुनखुन जी का एक बेटा जो अमेरिका में बैठा था वो फिर आ गया, क्या 10,000 थे साहब, आपने मेरा नाम तो ऐड नहीं किया, मैं भी करता हूँ। तो आपकी जो भी सोसाइटी, जो भी एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी, वो डिसाइड करेगी कि हाँ इसको भी ऐड करना, तो वो भी लखनऊ में चिकन नाम यूज़ कर पाएगा अगर वो उसमें ऐड हो। जब तक ऐड नहीं हुआ तब तक नहीं यूज़ कर। तो आप कीप ऑन एडिंग ऑल दोज हु आर इन्वॉल्वड इन दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। आपको करना चाहिए। अब डिस्प्यूट हो जाए कि नहीं भाई आपने नहीं किया, तो सोसाइटी वर्सेस तो मैं क्या कहानी सुना रहा था, टुंडे कबाब। जो टुंडे जी, जो महाराज टुंडे थे, उनके कोई बेटा नहीं था, बच्चा नहीं था, उन्होंने एक गर्ल को अडॉप्ट किया, तो वो एक जनरेशन आ गई। एक टुंडे कबाब साहब की भाई की एक जनरेशन, तो ये दोनों के बीच में डिस्प्यूट चला। उसने कहा टुंडे कबाबी वर्ड मैं यूज़ करूँगा, उसने कहा मैं यूज़ करूँगा, उसने कहा मैं ओनर हूँ, उसने कहा मैं ओनर हूँ। उसने कहा जब से टुंडे जी निकल गए उसके बाद से भाई बोला मैं ही मैं हूँ और कोई नहीं है। तो इधर जो डॉटर जो अडॉप्ट की थी उसका भी फैमिली आ गई। फाइनल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सेटल हो। आप लोगों में से कई लोगों को अगर ध्यान हो, सीनियर लोगों को, 2008-9 में टुंडे कबाबी आउटलेट्स लखनऊ में 7-8 खुल गए। 2012-13 में सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन हुआ, एक किसी पार्टी को दिया, किसको दिया मुझे बता दूँ, एक पार्टी को दिया, तो दूसरी पार्टी वो सारे आउटलेट बंद हो। अब फिर से ग्रैंड सन ऑफ टुंडे कबाबी करके शायद आप फिर से आउटलेट अलीगंज में तो ट्रेड मार्क की क्या वैल्यू है। टुंडे कबाबी आप समझिए, लखनऊ में बैठे हम लोग को तो टुंडे कबाबी पता है, जो आदमी भोपाल में दिल्ली में बैठा उसके लिए क्या टुंडे कबाबी शायद जानता भी ना हो। वो केस सुप्रीम कोर्ट में सेटल होता है, क्योंकि इसीलिए तो अब एक सीनियर लोगों के लिए भी इंटरेस्ट की एक स्टोरी सुनाता हूँ। आप लोग घर जाएंगे तो स्टोरी आ जाएगी। जब धीरू भाई अंबानी के बाद मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में डिस्प्यूट हुआ, टोटल प्रॉपर्टी थी 87,000 करोड़। 40,000 करोड़ तो प्यार से बढ़ गया। डिस्प्यूट हुआ 8,000 करोड़ और 2 साल के बाद एक
थे, पता नहीं किसके, एक के लॉयर थे राम जेठमलानी और एक के लॉयर थे कपिल सिब्बल। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में न्यूज़ में पढ़ा है और कहीं कोई ऑथेंटिकेटेड मतलब जो इम्पोर्टेंट है, दोनों का बिल 2 साल में दोनों लॉयर्स का बिल था 600 करोड़। पेटेंट अटॉर्नी बनना कितना इम्पोर्टेंट है, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, IAS बनना है, PCS बनना है कि लॉयर बनना है, पेटेंट अटॉर्नी बनना है। अब जैसे मैंने बताया ट्रेड सीक्रेट, क्या बताया मैंने ट्रेड सीक्रेट का एग्जांपल, कोका कोला का फॉर्मूला बिल्कुल सही। और पेटेंट की लाइफ क्या है 20 साल 20 years। अगर कोका कोला अपने फॉर्मूला को पेटेंट करा लेता तो फायदे में होता, कि उसने पेटेंट नहीं कराया तो फायदे में होता। क्यों? है? नहीं, अगर पेटेंट होता तो 20 साल के बाद सबका बना। क्या बात है, ये तो अभी से अटॉर्नी बन गई। अगर कोका कोला, इफ कोका कोला वुड हैव प्रोटेक्टेड हिज फॉर्मूला थ्रू पेटेंट, 20 साल के बाद हम भी कोका कोला बना रहे होते, लेकिन हम नहीं बना पा रहे क्योंकि उसने पेटेंट नहीं कराया, ट्रेड सीक्रेट रखा। अब सबसे बड़ा सवाल है, किस केस में हमें पेटेंट कराना चाहिए और किस केस में हमें ट्रेड ट्रेड सीक्रेट। सीक्रेट में जाना चाहिए? सोच के बताइए। जहाँ पर वो लाइसेंस दूसरी कंपनीज को सेल करना है तो वहाँ पर पेटेंट कराना होगा, अगर खुद ही देखिए सर, अगर मैं साइंटिस्ट हूँ, मैंने एक इन्वेंशन किया तो मानी बात है मैं किसी मार्केटिंग मैन्युफैक्चरिंग एजेंसी को लाइसेंस कर दूँगा, मैं थोड़ी खुद ही बनाऊँगा, खुद ही वो करूँगा। मैं तो साइंटिस्ट हूँ, लैब में काम करता हूँ, मुझे तो लाइसेंस करना ही है, खुद ही बना के मार्केटिंग भी मैं ही कर लूँगा, फायदा भी मैं उठा लूँगा, ऐसा पॉसिबल है। मैंने बनाया, मैंने बड़ी से बड़ी कंपनियों को, कोई मोटे आसामी को पकड़ के उसको लाइसेंस कर दिया, जो मुझे सबसे ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट दे पाए। खत्म, मैं तो नया इन्वेंशन करूँगा, नया फॉर्मूला ढूंढूंगा, नए कंपाउंड बनाऊंगा, नया प्रोडक्ट बनाऊंगा। मैं थोड़ी मैन्युफैक्चर करके थोड़ी मार्केटिंग कर दूँगा। सवाल भारी है, सोच के अगली बार बात करेंगे। अब कोई सवाल किसी के दिमाग में हो, मेरा प्रेजेंटेशन खत्म। ये लीडर स्लाइड छोड़ दिया, लीडर स्लाइड में जो हम लोग, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, हमने एग्रीकल्चरल इनोवेशंस में पेटेंट नहीं देते, तो इसलिए हम स्यूडो ब्रीडर्स राइट उपव को यूज़ करते हैं पेटेंट प्रोटेक्शन में। लास्ट में इम्पोर्टेंट साइट्स हैं, पहली साइट है IP इंडिया ऑफिस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया ऑफिस। दूसरी है वाइपो, मैंने आप लोग को बताया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी है US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। चौथी है कनेडियन पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, नहीं, चौथी है यूरोपियन पेटेंट ऑफिस। उसके बाद है कनेडियन पेटेंट ऑफिस। उसके बाद आजकल एक चलता है गूगल पेटेंट, गूगल में पेटेंट करके एक अलग आता है, और लास्ट मेरी ईमेल एड्रेस।
कभी किसी को पेटेंट से रिलेटेड कोई सवाल, कोई डाउट, कोई क्वेरी, एक ईमेल लिख सकते हैं। और लास्ट, थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतनी देर मेरे लिए इंतज़ार किया। किसी को कोई शक, शुबा, सवाल? अगर किसी कंपनी ने कोई फॉर्मूला बनाया है तो उसके पास दो ऑप्शन है, वो पेटेंट भी करवा सकते हो और अगर ऐसे जवाब मिलने लगे तो हम अटॉर्नीज की ज़रूरत ही क्या है? इस रेट सर एक क्वेश्चन था, मैं शायद सुन नहीं पाई, आपने बताया मेरे। तो ये जो पेटेंट पब्लिश और पेटेंट ग्रांटेड, ये दोनों में क्या कितना डिफरेंस है? जिस दिन भी आप पेटेंट एप्लीकेशन दुनिया में किसी भी पेटेंट ऑफिस में फाइल करते हैं, उस दिन से हम उसको लिखते हैं ये इंटाइटल्ड, ये इन्वेंशन फाइल्ड ऑन दिस डेट। जैसे ही आप फाइल करते हैं आपको एक फाइलिंग नंबर मिलता है। जिस दिन आप पेटेंट, पूरी दुनिया का ये रूल है, जिस दिन आप पेटेंट फाइल करते हैं 18 मंथ्स के अंदर उस पेटेंट ऑफिस को उसको पब्लिश करना होता है। उसे दुनिया को बताना होता है कि उन्होंने ये वाला पेटेंट इस कंट्री में फाइल कर दिया विदिन 18 मंथ। वो है पेटेंट पब्लिकेशन डेट। अभी ग्रांट नहीं हुआ, ग्रांट हो सकता है कि आपने अभी उसको ग्रांटिंग के लिए अप्लाई नहीं किया, अभी सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए कि कोई और इस इन्वेंशन को अपना पेटेंट न करा ले, आपने फाइल। उसके बाद हो सकता है 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, या यूएस में 1 साल के बाद आपको ग्रांट होता है। वो होता है ग्रांटिंग डेट। तो आपको एक पेटेंट नंबर मिलता है, एक सर्टिफिकेट आता है बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर का। वो सर्टिफिकेट में ग्रांटेड डेट लिखी होती है। तो पेटेंट फाइल्ड, पेटेंट पब्लिश्ड, पेटेंट ग्रांटेड। मैम का सवाल बता पाया? अरे सर इतना सिली सा क्वेश्चन था। मे भी आपने बता भी दिया हो बट मैं सुन नहीं पाई। नहीं, ये नहीं बताया सर। एक कंफ्यूजन था उसमें कहीं कि पेटेंट पब्लिश्ड और ग्रांटेड जो है वो बहुत सारे कंफ्यूजन। फिर मैं कहता हूँ ये एक्सप्लोरेटरी सब्जेक्ट, इसमें अभी बहुत सारे कंफ्यूजन है। फिर मैं कह रहा हूँ कहाँ पेटेंट मिलना चाहिए, कहाँ पेटेंट नहीं मिलना चाहिए। हम लोग अक्सर पेटेंट एप्लीकेशन फाइल करते हैं, प्री ग्रांट अपोजिशन होते हैं, पोस्ट ग्रांट अपोजिशन होते हैं। जैसे जब तक पब्लिश नहीं हुआ तब तक तो दुनिया को पता नहीं है कि आपने पेटेंट फाइल किया। डॉक्टर पूनम वर्मा ने कोई पेटेंट फाइल किया, कैसे पता चलेगा? जब पब्लिश होगा, जिस दिन पब्लिश होगा, आपके जो कंपटीटर हैं, जैसे इन्होंने भी वही पेटेंट फाइल किया था, ये कहेंगे दिस इज एन ऑब्वियस आउटकम ऑफ हिज एग्जिस्टिंग पेटेंट, ताकि आपका रिवोक हो जाए, रिजेक्ट हो जाए, इनके वाले की प्रायोरिटी बनी रहे। तो आप कहेंगे नो, दिस इज एन नॉन ऑब्वियस इंटरवेंशन, तो आपका कंटिन्यू हो जाएगा। तो ऐसे प्री ग्रांट, पोस्ट ग्रांट अपोजिशंस आते रहते हैं। जैसे लॉ चलता है, मैंने बताया था, लॉयर होते हैं, 2 लॉयर, दोनों सही होते हैं, कोई गलत होता है। एक राम जेठमलानी खड़े हैं, एक कपिल सिब्बल खड़े। कपिल सिब्बल की आज की फीस अभी पिछले हफ्ते ही पेपर में था 75 लाख रुपया पर हियरिंग। पिछले हफ्ते पेपर में 75 लाख रुपीज पर हियरिंग। और पता नहीं फैकल्टी को मजा आएगा। एक बार जब सुब्रतो रॉय साहब जेल में थे, उनको छुड़ाने के लिए राम जेठमलानी साहब पूरे अपने दल बल के साथ लखनऊ पहुंचे बेल कराने के लिए। और जब गए कोर्ट में तो बोले अरे ये तो लोअर कोर्ट में केस है, हाई कोर्ट में लाओ तब बात करो, वापस देने। अगर दिल्ली से राम जेठमलानी आए तो करोड़ 1.5 करोड़ रुपये का तो खर्चा, और गए नहीं कोर्ट में।
अब सोचिएगा क्यों नहीं गए। हम कुछ कंक्लूजन तक पहुँचे हैं क्यों नहीं गए, लेकिन इंटरेस्टिंग अटॉर्नीज क्यों ट्रेड सीक्रेट पे जाएं, किस आईपी में जाएं। आपने एक डिज़ाइन, एक प्रोडक्ट बनाया, आप डिज़ाइन में जाएंगे, पेटेंट में जाएंगे, ट्रेड सीक्रेट में जाएंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? आपको हमारे पास आना पड़ेगा, इसलिए ये ईमेल एड्रेस लिखा हुआ कोई सवाल? किसी को और कोई सवाल पूछना है? कुछ इंटरेस्टिंग लगा? कुछ समझ में आया? Thank God. Thank God. अब मैं ज़्यादा देर नहीं लगूंगा, ऐसे ही ऑलरेडी टाइम के। ये लोग उस अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं जहाँ पे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। तो फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स आई रिक्वेस्ट डॉक्टर रोशनी सिंह। Before vote of thanks, I invite